مسیح یسوع کے زندہ جلالی پرفضل نام میں سب کو سلام۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر سے ہمیں موقع دیا تاکہ ہم خداوند کے کلام کو شیئر کر سکیں، آپ کے درمیان اس کی خدمت کا کام سر انجام دے سکوں۔ شکر گزار ہوں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کا، جس نے چنا مقرر کیا تاکہ فضل ٹی وی پر آ کر اور اس کے پروگرام زندہ کلام دا لیونگ ورڈ آف گاڈ میں خداوند کی خدمت جو ہے سر انجام دے سکوں۔ شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے جو آپ فضل ٹیلی ویژن کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اس کے کلام کو سنتے ہیں۔ آپ سب کے لیے بھی میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ آئیے اس سے پیشتر کہ ہم کلام کو سنیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں گے، ہم دعا کریں گے۔ ہیلیلویا۔ نہایت بزرگ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری ستائش، تیری حمد کرتے ہیں۔ تجھے مبارک کہتے ہیں، تو عظیم ہے، پاک ہے، لشکروں کا خداوند ہے۔ پیارے خداوند، جتنی جانیں تیری حضوری میں جھکی ہوئی ہیں، پیارے خداوند تیرے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک ایک کو چھو اور اپنے پروں میں چھپائے رکھنا۔ یہ کلام ان کی زندگیوں میں 30 گنا، 60 گنا، بلکہ 100 گنا پھلاور ثابت ہو۔ اے خداوند، تیری برکت، تیری شفقت چاہتے ہیں، اور پیارے خداوند تیرا کلام، پیارے خداوند جو 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ پیارے خداوند توفیق عطا فرمانا، یہ کلام ہم سب کی زندگیوں میں بڑی برکت کا باعث بنے۔ تو آ اور برکت پر برکت عطا فرما۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں، یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ عزیزو، میرا نام پاسٹر سلیمان شمعون ہے اور میں جیزس منسٹریز چرچ عیسیٰ نگری میں ایز اے پاسبانی خدمت جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں۔ شکر گزار ہوں خداوند کا کہ اس نے چنا تاکہ کلام کی خدمت کو جو ہے وہ آپ کے سامنے سنا سکوں۔ آج ہم جس ٹاپک پر دیکھیں گے، سیکھیں گے، وہ ہے اسپرچول وارفیئر، یعنی روحانی جنگ۔ آئیے، جن کے پاس خداوند کا زندہ کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالیں عہد جدید میں سے دا نیو ٹیسٹامنٹ اور پولس رسول کا خط افسس کی کلیسیا کے نام، اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت مقدسہ سے لے کر اور اس کی 18ویں آیت مقدسہ تک مل کر پڑھیں گے۔ افسیوں کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت مقدسہ تک۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ 11ویں آیت میں ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کے تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ 14ویں آیت میں ہے، پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور نجات کا کھود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگاہ دعا کیا کرو۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ عزیزو، یہاں پہ جو ریفرنس پڑھا گیا روحانی جنگ کے تعلق سے، ہم دیکھیں گے کہ روحانی جنگ کیا ہے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ اسپرچول وارفیئر ہے، روحانی جنگ ہے، اور اس کی
डेफिनेशन स्पिरिचुअल वॉरफेयर की तारीफ यूं की जाती है, ये इब्लीस और उसकी कुव्वतों के खिलाफ लड़ने का नाम है। यानी ये रूहानी जंग है और ये इब्लीस और उसकी कुव्वतों के खिलाफ लड़ी जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर जंग में सिपाही शामिल होते हैं, फौजी शामिल होते हैं, आर्मी शामिल होती है, और रूहानी जंग में कौन कौन शामिल है? इस जंग में हर वो बलीवर, हर वो ईमानदार जिसने खुदावंद यीशु अल मसीहा को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है, वो इस जंग में कदम रख लेता है, वो इस जंग में शामिल हो जाता है, वो इस जंग में एंटर हो जाता है। चाहे वो खुद जंग लड़े या ना लड़े, इब्लीस उसके खिलाफ मनसूबाबंदी करना शुरू हो जाता है, इब्लीस उसके खिलाफ प्लानिंग करना शुरू हो जाता है। हर वो ईमानदार जब से वो खुदावंद यीशु अल मसीहा को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेता है, वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर में एंटर हो जाता है, उसमें कदम रख लेता है। इस वास्ते अजीज़ों, दुनिया की जंगें नज़र आती हैं, जब वो लड़ी जाती हैं तो पता चलता है वहाँ पे जंग छिड़ी हुई है, लड़ाई हो रही है। लेकिन ये रूहानी जंग है, ये इनविजिबल रैलम के अंदर लड़ी जाती है, यानी ये जंग नज़र नहीं आती। इस जंग की जो खुसूसियत है, ये ना नज़र आने वाली जंग है, और किसके खिलाफ है? इब्लीस और उसकी कुव्वतों के खिलाफ है। हर इंसान जो है, ईमानदार जो है, बिलीवर जो है, वो इस जंग में शामिल है। इस जंग को कैसे लड़ा जाए, किन चीज़ों से लड़ा जाए? हर जंग को लड़ने के लिए हथियारों की ज़रूरत होती है। जैसे कि दुनिया की जंगें जो हैं दुनिया के हथियारों से लड़ी जाती हैं, पिस्टल्स होते हैं, लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, तलवारें होती हैं, चाकू होते हैं, और आज तो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, बम के ज़रिया से जंगें छिड़ रही हैं। लेकिन जब ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है तो इसके लिए भी हमें हथियारों की ज़रूरत है। दुनिया के हथियारों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें रूहानी हथियारों की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने पढ़ा है और देखेंगे कि कौन से वो हथियार हैं। लेकिन जंग लड़ने के लिए पहले हमें मजबूत होना चाहिए। सिपाही जब जंग के लिए जाते हैं तो पहले उनकी ट्रेनिंग होती है, पहले उनकी तरबियत होती है, पहले वो कोर्स करते हैं। ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो जंग के लिए आगे आते हैं। अजीज़ों, हमने भी इस कोर्स में से गुज़रना है, इस कोर्स को पास करना है। लिखा है 10वीं आयत में, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो। हालेलुया। किस में मजबूत बनना है? अपने खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनना है। ये इस जंग की प्रेपरेशन है, ये इस जंग की तैयारी है। इस जंग को लड़ने के लिए ये एक तैयारी है कि कैसे हमने जंग में लड़ना है। हमने अपने खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनना है। हम अपनी कुव्वत से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, अपनी बहादुरी से नहीं, बल्कि अपने खुदावंद में रहकर ये जंग लड़ सकते हैं। गर्ज खुदावंद में, खुदावंद का मतलब है आका, मुनज्जी, मालिक, हमारा राजिक, हमारा पालने वाला, जिसने सांसें दी हैं, उसमें मजबूत बनना है, उसमें और उसकी कुदरत के ज़ोर में, क्योंकि वो कुदरत वाला खुदावंद है, वो फतेहमंद खुदावंद है। और उसकी कुदरत के ज़ोर में जब हम उसके सिपाही हैं तो फिर हमने उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनना है, क्योंकि ये रूहानी जंग है और यीशु के जो सिपाही हैं वो उसमें और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत होते हैं, उसमें मजबूत बनना है। लिखा है, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। अजीज़ों, खुदा के एक हथियार की बात नहीं की गई, 2 या 3 हथियारों की बात नहीं की गई। लिखा है कि खुदा के हथियार, सब हथियार बांध लो। वजह क्या है? रीज़न क्या है? आखिर क्यों इन हथियारों को लेना है? ताकि पौलुस रसूल बयान करता है इफिसुस की कलीसिया को, ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। इब्लीस हमारे खिलाफ प्लानिंग करता है,
इब्लीस हमें खुदा से अलग करना चाहता है, खुदा से दूर करना चाहता है। मैंने बताया पहले भी कि उसी दिन से हम रूहानी जंग में कदम रख लेते हैं जब से हम यीशु को कबूल कर लेते हैं। तो उसके बाद इब्लीस का एक टारगेट होता है, उसका एक मंसूबा होता है कि मैं इसको खुदा से अलग कर दूं, इसको खुदा से सेपरेट कर दूं। हमने खुदावन में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनना है ताकि इब्लीस के मंसूबों में कायम रह सकें। जो हमारे खिलाफ वो मंसूबाबंदी करता है, वो हमारे खिलाफ मंसूबाबंदी करता है, हमारे ख़ानदानों के खिलाफ मंसूबाबंदी करता है, हमारे चर्चिस के खिलाफ मंसूबाबंदी करता है, हमारे इलाकों के खिलाफ मंसूबाबंदी करता है। अजीज़ों, आपने कायम रहना है क्योंकि हमारा खुदावंद हमें कायम करता है। हमने खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनना। लिखा है कि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। ये एक कॉम्पिटिशन है अजीज़ों, इस कॉम्पिटिशन में हमने कायम रहना है। और लिखा है तुम इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। हमारे खुदावंद ने हमें फतह पहले ही दी है, लेकिन हमने इसको लड़ना है, मुकाबला करना है। ये ज़रूरी है। हिम्मत नहीं हारनी, बेदिल नहीं होना, डर नहीं जाना, बल्कि उसका मुकाबला करना है। लिखा है याकूब के ख़त के 4 बाब की 7वीं आयत में, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अजीज़ों, जब आप उसका मुकाबला करेंगे तो वो भाग जाएगा, क्योंकि हमारे खुदावंद में, खुदावंद यीशु अल मसीहा ने खुद मौत पर, इब्लीस पर, शैतान पर, कब्र पर, पताल पर फतह पाई है, और वो अपने लोगों को भी फतह से बढ़कर गलबा अता करता है। वो अपने लोगों को भी फातेह बनाता है। हमने उसमें कायम रहना है ताकि मंसूबों में कायम रह सकें। लिखा है क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया के तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। अजीज़ों, एक बात को जाने, जब आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर हैं, रूहानी जंग के अंदर है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मुखालिफ कौन है, आपका दुश्मन कौन है। आज बेशुमार इंसानों को अपना दुश्मन समझते हैं कि ये मेरे खिलाफ मंसूबाबंदी करता है, ये मेरे खिलाफ प्लानिंग करता है, रिश्तेदारों में दरारें डालता है इब्लीस। लेकिन याद रखें, इंसान हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि दुश्मन इब्लीस हमारा दुश्मन है, वो हमारा मुखालिफ है। लिखा है कि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों, अख्तियार वालों और इस दुनिया के तारीकी के हाकिमों। तारीकी के हाकिम जो हैं वो दूसरे आसमान में रहते हैं। 3 आसमानों का जिक्र है। पहला आसमान जो हमें नज़र आता है, जहाँ पर सूरज चांद सितारे हैं, इसके ऊपर जो है वो तारीकी का हाकिम है, इब्लीस है, उसकी कुव्वतें हैं, उसकी फ़ौजें हैं, और इससे ऊपर जो है बर्रा है, तख्त है, फरिश्ते हैं, 4 जानदार हैं। सेकंड जो आसमान है, वहाँ पर इब्लीस और उसकी कुव्वतें हैं, और उनके खिलाफ हमारी जंग है जो आसमानी मकामों में है। हम यीशु के जब सिपाही हैं तो हमारी जंग जो है वो रूहानी फ़ौजों से है जो आसमानी मुकामों में है। लिखा है हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, यानी कि इंसानों के साथ जंगे करना, लड़ाइयाँ करना छोड़ दें और इब्लीस के साथ जंग के लिए तैयार हो जाए। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। अपने खुदावंद को जाने, अपने खुदावंद को पहचाने कि मेरे साथ मेरा खुदावंद है, मेरा आका है, मेरा मुनज्जी है जो ज़ोरावर है। उसमें और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनना है। और फिर ये एक कुश्ती है, कुश्ती नहीं करना। हमें ने अजीज़ों खून इंसानों से, हुकूमत वालों, अख्तियार वालों, खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि इब्लीस और उसकी कुफ्तों के खिलाफ कुश्ती करना है। और कुश्ती में 2 पहलवान लड़ते हैं और एक की ये कोशिश होती है कि मैं इसके दोनों कंधे ज़मीन पर लगा दूं और खुद ऊपर आ जाऊं।
इसी तरह हमारी कुश्ती इब्लीस के साथ है। इब्लीस हमें नीचे लेकर जाना चाहता है, पताल में लेकर जाना चाहता है, हलाक करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, लेकिन हमारा खुदावंद हमें सरफराजी देना चाहता है, हमें ऊपर लेकर आना चाहता है, बरकत देना चाहता है। अजीज़ों, हमने कुश्ती करना है इब्लीस से और उसकी कुव्वतों से। लिखा है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। फिर से वही बात वो रिपीट कर रहा है खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल 13वीं आयत मुकद्दसा में, खुदा के सब हथियार। किसके सब हथियार? खुदा के सब हथियार बांध लो। हमने बांधने हैं, वजह यहाँ पे चेंज कर दी है, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। जब बुरे दिन हमारी ज़िंदगियों में आए, हमारे घरानों में आए, तो हम उसका मुकाबला कर सकें, बुरे दिनों में कायम रह सकें। हमारा खुदा नहीं चाहता कि हम गिर जाएं, हलाक हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, तबाह हो जाएं, बल्कि हमारा खुदावंद हमें कायम करना चाहता है। ज़बूर 34 है, उसकी 19वीं आयत में लिखा है कि सादक की मुसीबतें बहुत है, लेकिन खुदावंद उनको उन सब से रहाई बख्शता है। हालेलुया! हमारा खुदावंद अपने लोगों को रहाई बख्शता है, फतह बख्शता है, कामरानी बख्शता है। और अजीज़ों, हमने सब कामों को अंजाम देकर कायम रहना है। इस वास्ते अजीज़ों, ज़रूरी है कि हम खुदावंद में, उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बने और अपने खुदावंद पर ईमान रखते हुए उसमें कायम रहें और बढ़ते चले जाएं। आगे हथियारों का जो जिक्र 2 दफ़ा किया गया है, पहला हथियार 14वीं आयत मुकद्दसा में है, पर सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। पहला है सच्चाई से कमर कस कर, अपनी कमरों को कसना है, बेल्ट लेनी है, बेल्ट ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई की कमर को बांधना है। और सच्चाई हमारे लबों पर होनी चाहिए। अगर इसके ऑपोजिट देखें तो वो झूठ है, और झूठ जो है वो इब्लीस बुलवाता है, और इब्लीस कहता है, उसके ताल्लुक से लिखा है, इब्लीस झूठ का बाप है। जब वो कहता है तो अपनी सी कहता है, वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। इसी वास्ते अजीज़ों, कभी भी बातों बातों में खता ना करें, क्योंकि झूठ इब्लीस की तरफ से है। सच्चाई से अपनी कमर कसना है, बेल्ट को लेना है, सच्चाई की बेल्ट को लेना है। और फिर सच्चाई मेरा और आपका यीशु अल मसीहा है। उसके ताल्लुक से लिखा है, बस तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। अजीज़ों, सच्चाई से वाकिफ़ हो जाएं, यीशु से वाकिफ़ हो जाएं, और वही आपको आज़ाद करेगा आपकी उलझनों से, आपकी परेशानियों से, आपकी बीमारियों से, आपकी मुसीबतों से। वो आपको आज़ाद और बहाल करने की कुदरत रखता है। सच्चाई से कमर कसकर अपने आप को खुदावंद के सामने तैयार करें और जंग के लिए तैयार हो जाएं। अपने लबों पर सच्चाई रखें और खुदावंद के सामने अपने आप को पेश करें। दूसरा जो हथियार है वो ये है कि रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, यानी कि बख्तर जो है वो हमारे दिल की हिफाजत करता है। शील्ड जो लेनी है वो रास्तबाजी की लेनी है, रास्तबाजी में कायम रहना है। रास्तबाजी दिल जो है, दिल की हिफाजत करता है बख्तर। तो अजीज़ों, इसका मतलब ये है कि इब्लीस हमारे दिलों पर भी अटैक करता है, हमने अपने दिलों की भी हिफाजत करनी है। कलाम मुक़द्दस में दिल के ताल्लुक से लिखा है कि दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलेबाज और इलाज है, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। इब्लीस तरह तरह के मंसूबे दिलों में लेकर आता है कि ये कर लो, वो कर लो, वो अलग करना चाहता है। इसी वास्ते ज़रूरी है कि हम रास्तबाजी का बख्तर जो है वो लगाएं, और रास्तबाजी का बख्तर लगाते हुए रूहानी जंग को लड़ें और इसमें कायम रह सकें, बुरे दिनों में कायम रह सकें, बुरे दिनों में मुकाबला कर सकें। रास्तबाजी का बख्तर लगाते हुए अजीज़ों, हमने कायम रहना है, ताकि हमारे दिल की भी हिफाजत हो सके। और उससे कहना है, खुदा तू मुझे नया दिल अता कर, जैसा तू चाहता है। वो तो कहता है, मैं तुम्हें नया दिल अता करूँगा और गोश्त रूह तुम्हारे दिलों में डालूँगा। अजीज़ों, पहला हथियार जो है सच्चाई से कमर कसनी है। दूसरा जो है वो रास्तबाजी का बख्तर लगाना है। रास्तबाजी का बख्तर अपनी ज़िंदगियों में लेते हुए, और याद रखें कि हम रूहानी जंग के अंदर हैं। रूहानी जंग के अंदर हमारा कदम है जो इब्लीस और उसकी कुव्वतों के ख़िलाफ़ है।
खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनते जाना है। और तीसरा जो है, और पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर। क्या पहनकर? पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर। अजीज़ों, हर वक्त जूते जो हैं वो तैयारी को ज़ाहिर करते हैं। जब आप घर से बाहर निकलें तो सबसे पहला काम जूते पहनते हैं। जूते जो हैं वो तैयारी को ज़ाहिर करते हैं। और कौन से जूते पहनने हैं? सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते। अंजील को पहनना है, अंजील को सुनाना है, अंजील को अपने अंदर रखना है और फिर सुलह के लिए एग्री रहना है, क्योंकि बाप चाहता है कि उसके लोग सुलह करें, क्योंकि उसने यीशु ने हमारी बाप के साथ सुलह करवाई है। यूहन्ना की अंजील 10वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, लेकिन मैं इसीलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की ज़िंदगी पाओ। अजीज़ों, यीशु चाहता है कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ, और ज़िंदगी वही देता है। उसने हमारी बाप के साथ सुलह करवाई है और हमने भी आपस में सुलह के साथ रहना है, सुलह के साथ चलते रहना है और सुलह में कायम रहते हुए आगे बढ़ना है। अपने बाप के साथ सुलह रखें, घर वालों के साथ सुलह रखें, लोगों के साथ सुलह रखें, क्योंकि इब्लीस जुदाइयाँ डालता है। अगला जो हथियार है जल्दी से देखेंगे वो यह है कि और इन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो। ईमान पर कायम रहना है। जब रूहानी जंग में है तो इब्लीस आपके अंदर खौफ लेकर आएगा, डर लेकर आएगा, लेकिन आपने अजीज़ों अपने ईमान पर कायम रहना है और हमेशा ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहना है, यीशु की तरफ निगाहें लगानी है। और इस बात को याद रखना है कि इस जंग में जो सबसे जोरावर है वो मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है, जो खुद फाते है और अपने लोगों को भी फतह से बढ़कर गलबा अता करता है। ईमान की सिपर लगाकर और फिर उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझाते जाना है जो वो हमारे खिलाफ प्लानिंग करता है, मनसूबाबंदी करता है। अगला हथियार जो है, पांचवा जो है, और नजात का खोद यानी हेलमेट पहनना है। साल्वेशन, हेलमेट ऑफ साल्वेशन को हमने पहनना है ताकि हमारे सरों की भी हिफाजत हो सके, हमारे जहनों की भी हिफाजत हो सके। अपने जहनों को भी नजात का खोद पहनते हुए और यीशु में कायम रहते हुए उसमें अजीज़ों अपने आप को छुपाना है ताकि हर एक हिस्सा हमारा सेफ हो, प्रोटेक्ट हो अजीज़ों। और नजात किसी दूसरे के वसीला से नहीं है। ये लिखा है कि आसमान के तले ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, नजात सिर्फ एक ही देता है और वो मेरा और आपका यीशु अल मसीह है। उसको पहनना है, नजात का खोद पहनना है। और छठा हथियार है रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, ले लो। अजीज़ों, रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है उसको लेना है। और कलाम बड़ा इम्पोर्टेंट और अहम हथियार है जो हमारी ज़िंदगियों में बड़ा काम अदा करता है। इसी वास्ते ज़रूरी है कि कलाम को पढ़ें, कलाम को सुने, कलाम को सीखें, ताकि जब आपकी ज़िंदगी में इब्लीस बुरे दिन लेकर आए, परेशानियां लेकर आए, तो आप कलाम के ज़रिया से उसे कह सकें जिस तरह मेरे यीशु ने कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, ऐ शैतान दूर हो। जब आप कलाम को पढ़ेंगे तो कलाम के मुताबिक आप इब्लीस का मुकाबला करेंगे तो वो भाग जाएगा। अजीजों, कलाम बड़ा पावरफुल हथियार है, बड़ा अहम हथियार है और कलाम जिंदगियों को तब्दील करता है, घरानों को तब्दील करता है। ज़रूर है कि ये जो हथियार है खुदा का कलाम, इसको लें, इसको पढ़ें और इसको इस्तेमाल करें। और फिर जब आप दुआएं भी करें तो कलाम को अपनी ज़िंदगियों में इस्तेमाल करें। अजीज़ों, ये बड़ा पावरफुल हथियार है और जो ज़िंदगियां इस कलाम को पढ़ना शुरू कर देती हैं वो ज़िंदगियां तब्दील होना शुरू हो जाती हैं, उन ज़िंदगियों में बरकत आना शुरू हो जाती है। ये बड़ा पावरफुल हथियार है। और लिखा है यीशु खुद कलाम है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। अजीज़ों, इस कलाम को अपने साथ ले लें, यीशु को अपने साथ ले लें और उसके साथ चलते रहें। आखिरी हथियार को देखेंगे और वो लिखा है और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो।
عزیزو ہم نے جاگتے رہنا ہے، ہم نے بیدار رہنا ہے، ہم نے ہوشیار رہنا ہے اور دعاؤں میں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ دعا ایک بڑا پاورفل ہتھیار ہے۔ دعا وہ کچھ کر دیتی ہے جو آپ اپنی قوت سے نہیں کر پاتے، لیکن خداوند کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ دعا نظر تو نہیں آتی، جیسے کہ یہ جنگ نظر نہیں آتی، لیکن عزیزو بہت کچھ یہ دعا دکھاتی ہے۔ دعا کے وسیلہ سے زندگیاں تبدیل ہو گئی ہیں۔ اسی واسطے ہم نے جاگنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، بیدار رہنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے، اور دعا کرنے میں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی ہے، کیونکہ ہمارا خداوند خود دعا کرتا رہا ہے۔ عزیزو دعائیں کرنی ہے اور اس کے کاموں میں، اس کے جلال میں آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا پاورفل اور بڑا سٹرونگ ویپن ہے دعا جو ہے۔ پہلا جو ہے سچائی سے کمر کس کر، دوسرا راست بازی کا بختر لگا کر، تیسرا پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، چوتھا ایمان کی سپر لگا کر، اور پانچواں نجات کا کھود، اور چھٹا روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے، اور ساتواں اور آخری دعا جو ہے جی عزیزو ہتھیار ہے۔ ان ہتھیاروں کو لیں خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنتے جائیں، تاکہ ابلیس کے سب جلتے ہوئے تیروں کو جو وہ آپ کے خلاف پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، بجھا سکیں اور آپ اس جنگ پر فاتح ہو سکیں۔ خداوند نے ہمیں پہلے ہی یہ توفیق دی ہے۔ لکھا ہے مرکز کی انجیل میں کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قوت پر غالب آؤ۔ غلبہ یسوع نے پایا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو بھی دیتا ہے۔ ہم فاتح ہیں اور ہمارا خداوند بھی ہمیں فاتح بناتا ہے۔ عزیزو ہر وقت روحانی جنگ لڑنے کے لیے تیار رہیں، بیدار رہیں، ہوشیار رہیں، کیونکہ ابلیس ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اسی وجہ سے ہم نے جاگنا اور ہوشیار رہنا ہے اور روحانی جنگ کے لیے سب ہتھیاروں کو لیتے ہوئے، پہنتے ہوئے اس کو لڑنا ہے، تاکہ ہم مسیح میں قائم رہ سکیں۔ خداوند ہمیں اس کلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔